सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Life is a fight, but not everyone's a fighter. Otherwise, bullies would be an endangered species. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शीजा और मैं साहिबा। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो जस्ट जूनियर। फ्रेंड्स, एवरी वीक हम आते हैं आपके लिए न्यू स्टोरीज लेकर। और हाँ साहिबा, साथ ही में हम अपने जूनियर फ्रेंड्स को फिटनेस की बातें भी बताते हैं और एरोबिक्स भी सिखाते हैं। Yes, Dee. Let's not waste our time and get ourselves fit. It is health that is the real wealth and not the silver or gold. Yes, Dee. You are right. और ये बात हमारे जूनियर फ्रेंड्स को भी समझ लेनी चाहिए। Very true साहिबा। चलिए बुला लेते हैं हम अब अपने एरोबिक इंस्ट्रक्टर को, जो हमें कुछ इजी स्टेप्स के साथ सिखाएंगी एरोबिक्स करना। Let's welcome Shweta Di and two junior friends, Afreen और Anvita. Hi everyone, welcome back to this amazing show of fitness. I am your fitness instructor Shweta Srivastav. Let's begin this fitness session with Josh and smile. Let's march out and warm up our body for this amazing roller coaster ride. The first exercise which we will do today is knee up and hands clapping beneath. It will strengthen your leg muscles. The second exercise which we will do is the same leg movement, but hands will coming up to down. This will help in coordination with your mind and body and strengthen your muscles. The third exercise जो हम आज करने वाले हैं वो है side to side squats with crunches. This will help in your glutes and oblique muscles and strengthen your core too. Fourth exercise which we will do today is lunges, both sides. This is very good for your glutes muscle, for your calves. Let's cool down our body, which you know is very important as warm up. Let's cool down our body with the smile.
thank you everyone for watching this episode. I hope you are doing all these exercises at home and getting fitter day by day. See you all in next episode with full energy and josh. Jai Junior, oh. To enjoy the glow of fitness, we should exercise regularly. Thank you, Shweta Di and junior friends. Thanks Afreen and Anvita. Jai Junior, oh. आज करेंगे बात इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन साइबर बुलिंग ऑन चिल्ड्रन। सीखेंगे कुछ अच्छी बातें और जानेंगे कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए और क्या होता है साइबर बुलिंग का इम्पैक्ट उनकी मानसिकता पर। इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट हेली फरकौर। शी इज अ सेक्रेटरी, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। प्लीज वेलकम। Please have a seat. Thank you. Thank you. साथ ही में हम बुलाएंगे डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, who is the director of Indrapuram Group of Schools and principal of Indrapuram Public School, Indrapuram, Ghaziabad. Welcome, sir. Thank you, ma'am. साइबर बुलिंग पे प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एक बात करेंगे और हम जानकारी देंगे अपने सारे व्यूअर्स को कि व्हाट इज साइबर बुलिंग एंड हाउ वी कैन डील विद इट। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि साइबर बुलिंग क्या होता है? बुलिंग समझना ज़रूरी है साइबर बुलिंग से पहले, बिकॉज बुलिंग इटसेल्फ जो है उसको अगर हम समझें तो किसी को परेशान करना, एब्यूज़ करना, मजाक उड़ाना या किसी चीज़ का डरावा देके कुछ काम करवाना, तो बुलिंग जनरली ये होता है। लेकिन अगर हम साइबर बुलिंग की बात करें तो वो कुछ ऑनलाइन स्पेस में जो बुलिंग होती है वो साइबर बुलिंग होती है। लगभग कन्वेंशनल बुलिंग जो इन पर्सन है वैसी ही होगी, लेकिन कुछ शेप्स और ली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की फेक आईडी बना के उसको परेशान करना, या किसी की पोस्ट पे कुछ कमेंट्स करना, या ऑनलाइन बॉडी शेमिंग करना, इस तरीके से साइबर बुलिंग की फॉर्म्स हो सकती हैं अलग अलग। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, सो हाउ टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन हेल्प स्टूडेंट from recovering or maybe coping up with this cyberbullying? Firstly, any child, first of all, as a school authority must sensitize about this issue to the parent and to the children. The moment the child come to know that this is something happening wrong, as madam have said online, it's very important that the child must speak to the parent. It could be father, it could be mother. If not comfortable with the parent, the child should speak to the school counselor, the teacher to whom the child feel more comfortable, and report. Thereafter, all that consequences, whatever the remedial measure which we have got, we will start finding out that. So first part is the reporting, and the parents should come and meet the school authority. The parents should start trusting the school, and that is how the things will improve. So today in our studio we have students of Indrapuram Public School, Indrapuram, Ghaziabad. Welcome to our studio students. तो चलिए ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इन बच्चों के on cyberbullying. Can I have the question please? Greetings everyone. I am Divya Modani from Indrapuram Public School, Indrapuram, and I wanted to ask that what is the difference between cyberbullying and in-person bullying? As I said, कन्वेंशनल जो इन पर्सन बुलिंग है और जो साइबर बुलिंग है मोर और लेस ओवरलैप करती हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस जो डिफरेंस की हैं, इन पर्सन बुलिंग में फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, साइबर बुलिंग में इट इज़ समवॉट कहीं ना कहीं इमोशनल मेंटल उस चीज़ का जो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग इज़
क्योंकि इसमें रीच बहुत बड़ी है. जब भी बुलिंग साइबर बुलिंग होगी तो उसमें n number of people can see, can witness that bullying. Third thing is that साइबर बुलिंग की एक डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है. सो उसकी एक परमानेंस ऑफ रिकॉर्ड है जिसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है. फ़ायदा ये है यू कैन कलेक्ट एविडेंस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, बट नुकसान ये है दैट एनीथिंग विच एंटर्स ऑन इंटरनेट विल स्टे देयर फॉर एवर एंड कैन बी फाउंड आउट बाय एनीवन. So that is the main difference. Can we have the next question, please? My name is Srishti. I am from Indrapuram Public School, Indrapuram, and I would like to ask that what if we are not comfortable in notifying our parents about being cyberbullied? Who else can we notify? The best person to whom you trust. It could be anyone from the school, it could be your class teacher, it could be your counselor, it could be your school principal, it could be your headmistress, any teacher whom you trust, whom you are open, you can share this problem to that concerned person. मैं इसमें थोड़ी सी बात जो पेरेंट्स के लिए भी ऐड करना चाहूँगी इफ़ यू परमिट, बिकॉज हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि पेरेंट्स को जाके बताएं सबसे पहले. तो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है. उनको एक तरीके का कॉन्फिडेंस पहले बच्चों को देना ज़रूरी है कि वेन एवर यू कम एंड टेल अस समथिंग, हम सुनेंगे, हम समझेंगे. एंड द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव फियर ऑफ रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स, दे शुड हैव फेथ ऑफ देयर सपोर्ट. इसमें लेकिन एक एस्पेक्ट जो किक इन कर सकता है कि पेरेंट्स चाहें भी उनको सपोर्ट करना. साइबर बुलिंग के केस में आई थिंक अगर हम थोड़ा इलिटरेट अगर कोई पेरेंट्स हैं, वो केपेबल नहीं है बच्चों को इस केस में सपोर्ट करने के लिए, तो और वेन्यूज़ और प्लेटफॉर्म्स भी बच्चों को और पेरेंट्स को पता होना चाहिए जहाँ पे वो जाके अपनी इस तरीके की हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं. कुछ जो हेल्पलाइंस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. बच्चों की जनरल हेल्पलाइन हमें पता है 1098 है. साइबर हेल्पलाइन जो पर्टिकुलर है नेशनल लेवल पे, दैट इज़ 1930, दैट इज़ अ साइबर हेल्पलाइन. इसी तरीके से पोर्टल्स हैं साइबर कंप्लेंट्स के लिए. एंड जो सिंस DLSA की सेक्रेटरी हूँ मैं, तो मैं आपको ये चीज़ भी ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारा भी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 चलता है, 1516. इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, 1516. तो आपको कोई लीगल हेल्प भी जो है वो मिल सकती है, बिकॉज चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड, सो वी कैन ऑल्सो हेल्प इन दैट वे. That was really an informative, like I would say that is a really good information that you have provided us. Thank you so much both of you. Sir, my question to you is कि हम as a society कैसे cyber bullying को reduce कर सकते हैं, साथ ही में एक safe environment कैसे create कर सकते हैं for children? It's a very good question, and देखिए सबसे पहले what I feel the sensitization of the parents and the children. They must understand the etiquettes of using this digital world. And this etiquettes, it's very important the school to organize repeated kind of seminar, repeated kind of a workshop where parents could be called, children should be made to sit and listen. So this is how we can at least make the children to understand when they are in the digital world or in that platform, what etiquettes they have to follow. There are certain etiquettes which is given, whom to accept, whom to reject, how to report, as madam have said, how to report, to whom to report. These are very important. Same way, the parents should also be sensitized. If at all, if they have given this gadget to the children, they must also do the supervision. Under the supervision, especially I am talking about the children who are of class 6, 7, 8, they must be able to find out, they must able to give a report to the parents. So that is how we would be able to reduce. It's more of educating the children, more of sensitizing the parents. We can reduce this cyber crime. Thank you, sir. Can we have the next question, please? This is Riya Bhatt from Indrapuram Public School, Indrapuram, Ghaziabad. My question for you, sir, is what are the impacts of cyberbullying on the students' performance? This is very good question which you have asked. The greatest impact is the emotional, and this emotional will turmoil your confidence, will disturb your self-esteem, and you will be start distancing yourself from the major event of the school. So that is how it is going to affect your growth emotionally. It will affect your studies,
And I have also seen the cases where the children have even attempted for the suicide also. So it's a huge impact on the children emotional development, social development, the mental development. So these are the three aspects which I feel will be damaged. Ma'am, one more question for you. How can we prevent cyberbullying in the society? इसको मैं दो तरीके से समझाना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एज अ प्रीकर्सर मैं ये बताना चाहूँगी, जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं या आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम ये एज्यूम ना करें कि कोई थर्ड पर्सन ही साइबर बुलिंग कर रहा है और हम इनको सिर्फ सिखा रहे हैं कैसे बचना है. आई फील एनी वन ऑफ देम कैन बी अ सोर्स ऑफ साइबर बुलिंग, अगर क्योंकि हमें सेंसिटिविटी कई बार समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें हम पोस्ट कर देते हैं, हम खुद ही शायद किसी की बुलिंग कर रहे होंगे और हमें रियलाइज़ भी नहीं होगा. तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें भी ध्यान रखना है कि हम भी किसी की बुलिंग ना करें अननोइंगली. अगर दो डायमेंशंस प्रिवेंशन की देखे जाएं तो वी एज अ सोर्स ऑफ ऑनलाइन यूजेज, सबसे पहला तो हमारा कंट्रोल हो सकता है कि हम कंटेंट क्या पोस्ट करते हैं विच इज ससेप्टेबल टू साइबर बुलिंग. तो हम ध्यान से ये देखें कि एज पर लॉ क्या हम पोस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा ना हो जो पहला लॉ के अगेंस्ट ही हो. सेकंड, ऐसा ना हो कि जो किसी की मानसिक या शारीरिक तौर पे किसी की राइट्स इन्फ्रिंज कर रहा हो या किसी को डिस्टर्ब कर रहा हो. सेकंड हो सकता है जो हमारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो मैसेजिंग है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं, सब में कुछ ना कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं. तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए मेरा ये एक मैसेज है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना ना छोड़े, इन्फॉर्म्ड यूज़ कैसे करना है उस चीज़ को सीखना ज़रूरी है. प्रिवेंशन वहीं से आ सकती है. चलिए ले लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. My name is Aditi Bish from the school Indrapuram Public School, Indrapuram, Ghaziabad. I wanted to ask you that what actions should I take in the future so I may be prevented from being cyberbullied? As already I have said, the basic etiquettes you have to follow. Any kind of acceptance which you are doing it should be known to you. Any kind of messaging which you are giving again should be known to you. It should not be that which could hurt somebody's sentiments. That's very important. And second, again you have to take the parents into confidence when you are using it. Keep on apprising your parents what exactly you are doing on this digital world, digital platform, and that is how it's going to help you out. मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? एज आई सेड, टेक्नोलॉजी से दूर करना या भागना सोल्यूशन नहीं है. उसके बारे में और जानना और सेफ कैसे यूज़ करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आप टेक्नोलॉजी से ही उसकी यूज़ ज़्यादा सीख सकते हैं. बहुत सारी ऐसी वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज़ या कुछ भी ऐसा जो भी आपको लगता है कि जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ सेफ कैसे किया जा सकता है, आप वो देख सकते हैं. यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन टॉक टू योर कंप्यूटर टीचर इन द स्कूल. एज सर सेड कि टीचर से, फैकल्टी से आप बात करें, यू विल गेट टू नो मोर. एंड स्कूल्स जैसे कि करवाते ही हैं ऐसी एजुकेशन, एंड वी एज इन DLS से ऑल्सो वी मेक एंडेवर कि हम स्कूल्स में ऐसी एजुकेशन दें साइबर फ्रॉड, साइबर यूजेज पे. उन लेक्चर्स को, उन सेशंस को ज़रूर समझें और इम्प्लीमेंट करें एंड एजुकेट योर पेरेंट्स ऑल्सो इन दैट सो दैट दे कैन बी अ सपोर्ट टू यू अल्टीमेटली. Thank you. I just wanted to add, if anything which is happening wrong, I think we should report. Reporting is very important. We should not close our eyes and keep mum. If you are doing this way, the things will become more and more worse. So without any fear to all these children, please report. चलिए ले लेते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. Greetings, myself Dishita Sharma, and my question for ma'am is, are there any legal actions that can be taken against the person who is inflicting the cyberbullying? सी साइबर बुलिंग की फॉर्म क्या है उस पर डिपेंड करता है कि एक्शन किस तरीके का लिया जा सकता है, और लिया जा सकता है थ्रू लीगल कोर्स या फिर जस्ट योर ओन सेफ्टी काउंसलिंग एट्सेट्रा. सो इफ़ कोई ऐसा एक्ट है साइबर बुलिंग का जो किसी ना किसी ऑफेंस में फॉल कर रहा है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हो सकता है, इंडियन पिनल कोड में हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में हो सकता है, डिपेंड्स. ठीक है, जैसे ऑब्सीन पिक्चर्स अपलोड करना किसी की, दैट कैन बी एन ऑफेंस. सो ऐसे केसेस में यू कैन ऑलवेज आइदर कॉल द हेल्पलाइंस, एज आई सेड. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू पुलिस थ्रू नेशनल क्राइम, जो साइबर क्राइम पोर्टल है, उससे कर सकते हैं.
नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे भी वो अपने आप साइबर सेल को फॉरवर्ड कर देते हैं आपकी कंप्लेंट्स. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली एंड इंडिया देयर आर फ्रंट ऑफिसेज ऑफ DLSA जहाँ पे 10 to 5 एक एडवोकेट बैठते हैं और हमारे यहाँ पे DLSA ऑफिस की जो भी असिस्टेंस है हम वहाँ पे वो दे सकते हैं आपको. हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फ्रंट ऑफिस है. वी कैन हेल्प यू पीपल टू रीच आउट टू पुलिस एज वेल. वी हैव पैरालीगल वॉलंटियर्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इवन इन अपलोडिंग द कंप्लेंट्स. थैंक यू मैम एंड सर कि आप हमारे शो में आए और आपने हमें इतनी सारी और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो आई गेस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर शो. Thank you, sir and ma'am, for coming to our show. Thank you, beta. Thank you. तो चलिए अब आ गया है आप सभी का सबसे फेवरेट सेगमेंट. पता है वो क्या है? नृत्य कथाएं, which is storytelling in a dance form. शीजा दी, आज मेरा मन गधा और सियार वाली स्टोरी सुनने का कर रहा है और ये हमारे जूनियर फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आएगी. अच्छा साहिबा, तो चलिए शिखा दी से आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि वो आपको आज यही स्टोरी सुनाए. और दिखाइए ना शिखा दी, प्लीज. एक समय की बात है, किसी जंगल में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था. दिन के समय गधा अपने मालिक के साथ रहता और उसकी कपड़े की पोटलियां ढोता. रात के समय धोबी गधे को मैदान में घूमने फिरने और घास खाने के लिए छोड़ देता था. लेकिन गधा चुपके से पास के किसी खेत में चला जाता और हरी भरी सब्जियां खाकर मजे से घूमता. एक दिन यूं ही घूमते हुए उसे एक सियार मिला और जल्द ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए. अब दोनों दोस्त हर रात साथ रहते और खेतों में सब्जियां खाते, खूब मजे करते और सूरज निकलते ही गधा अपने मालिक के पास वापस चला जाता. ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा. फिर एक दिन सियार ने गधे से कहा, सुनो दोस्त, मुझे ना एक नए खेत का पता चला है जहां बहुत ही स्वादिष्ट हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां उगी हैं और वो खेत ज्यादा दूर भी नहीं है. पता है, मुझे तो लगता है वहां मुझे भी अपने खाने के लिए छोटे मोटे जानवर मिल जाएंगे. क्यों ना आज रात हम वहां चले. दोनों दोस्त उस रात नए खेत में गए. गधे ने वहां जी भरकर हरी सब्जियां खाई और उसके बाद कहने लगा, ओह मित्र, आज तो मजा ही आ गया खाने का. इतनी स्वादिष्ट सब्जियां खाकर मन तृप्त हो गया. मैं आज बहुत खुश हूँ और देखो तो आज चांद भी कितना सुंदर लग रहा है. आज तो मेरा गाना गाने का मन कर रहा है. अरे नहीं नहीं, हम यहाँ आवाज नहीं कर सकते. तुमने अगर गाना गाया तो किसान उठ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे. इसलिए चुपचाप से खाओ और फिर निकल चलो. गधे को सियार की ये बात अच्छी नहीं लगी और वो
गुस्से में बोला, तुम्हारे जैसे एक जंगली जानवर को संगीत के बारे में क्या पता? मैं तुम्हें दिखाता हूँ सच्चा संगीत क्या होता है। सियार ने जब देखा कि गधे ने गाने की जिद पकड़ ली है तो उसने कहा, अगर तुम गाना ही चाहते हो तो मेरे बाहर जाने तक रुको, ताकि मैं बाहर जाकर किसान पर नजर रख सकूं। ये कहकर सियार भाग गया और उसने अपने आप के छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह ढूंढ ली। इधर गधे ने चांद की तरफ देखकर गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से किसान उठ गया। पूरे चांद की रोशनी में गधा उसे साफ साफ दिखाई दिया। किसान ने छड़ी उठाई और गधे को मारते मारते खेत के बाहर पहुंचा दिया। गधा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ खेत के बाहर आया। तभी छुपा हुआ सियार उसके पास पहुंचा और हंसने लगा। ओ मित्र, तुमने तो आज क्या खूब गाना गाया। मैंने देखा कि किसान ने इतने सुंदर गाने का कितना बढ़िया इनाम दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हाँ, हर चीज का एक सही वक्त होता है। हाँ दी, ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, है ना? बिल्कुल, वाकई ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। और फ्रेंड्स, आपने भी देखा ना कि हर एक चीज का एक सही वक्त होता है, और अगर वो चीज उस वक्त पे नहीं होती है तो वही होता है जो गधे के साथ हुआ है। थैंक्स शिखा कि आपने हमें इतनी अच्छी स्टोरी बताई और दिखाई। थैंक यू शिखा दी। Now it's time to take your leave. We'll meet next week the same time with our new topic. आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अब आप हमें अपने फीडबैक दे सकते हैं। लॉग इन करिए ddjazzjunior@gmail.com पे। साथ ही में आप हमें अपने इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye. Bye.